Thank you. Thank you, Rajinder Bhai, for your very warm welcome. As always, you reminded me of Bhavani Singh once again. और भाई राजेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो मेरा संक्षिप्त में परिचय दिया, और आपने एक बार फिर से मुझे भाई भवानी की याद दिला दी। Because as I told you earlier, one of the best students of the Bible that any teacher can have is a person like Bhavani Singh. जिस प्रकार से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एक बाइबल अध्ययन का एक सही विद्यार्थी जो था, वो भाई भवानी के समान है। Bhavani Singh was a great encouragement to me because every time I came here to teach the word, every time he had something positive to talk about, and that was a great encouragement to me. और जब कभी भी मैं बाइबल अध्ययन को सिखाने के लिए आपके बीच में आया करता था, उस समय में भाई भवानी के पास हमेशा कुछ सकारात्मक बातों को कहना उनकी एक खामी थी, जो मुझे आज भी याद है और स्मरण आती है। You see, one thing I want to tell you in my years of experience as a professional and also on the spiritual side, one thing that every one of us on this side of the camera always require encouragement. और मैं एक पेशेवर और एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में चाहे कितना भी पेशेवर और अनुभव आदमी और आत्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को एनकरेजमेंट की, उत्साह की सख्त जरूरत होती है। Most of the times, it is people who encourage people like me. और बहुत से लोग जो उत्साहित करते हैं, जैसे कि मैं हूं। But sometimes when people fail, it is God who encourages us. लेकिन जब कभी मनुष्य असफल हो जाते हैं, तब उत्साह करने वाला वो परमेश्वर होता है। Today on the Zoom platform, when I saw Bhavani Singh's, someone has used Bhavani Singh and logged in here. So when I saw that name of Bhavani Singh, I was reminded of him so much. And when Rajendra Bhai prayed, he also prayed, keeping Bhavani Singh in mind. So I my thoughts rush back to Bhavani Singh. और क्योंकि उनके नाम से हमारे जो जुड़े हुए भाइयों बहनों में से भवानी भाई के नाम से कोई उनका घर से, परिवार से जुड़ा हुआ है, और उनका नाम देख करके मेरी याद, मेरी जो सोच है, दौड़ करके भाई भवानी की ओर गई और उनको मेरे मन में स्मरण आया, और इस बात को मैं इसलिए रखा हूँ। All right, so I thank the Lord for this opportunity. I thank Deepu. I thank the members and organizers of Bundelkhand Gospel Outreach Work for having invited me to share the word. और एक बार फिर से मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, और बुंदेलखंड गॉस्पेल टीम के संचालकों के लिए, जिम्मेदार भाइयों बहनों के लिए, भाई दीपू के लिए, इत्यादि सबसे बढ़कर के मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उसने मुझे अवसर दिया आपको प्रभु का वचन सुनाने का और सिखाने का। I also want to thank Deepu for being available for translation because I'm quite particular that Deepu is available when it's my turn to preach or teach the word. And according to that, he's made himself available. So I thank the Lord for being kind to him. And I also want to thank Deepu for being available. Thank you, Deepu. God bless you. Uncle, thank you so much. It's my always privilege to be available for the translation. Thank you. All right. All right. Now, I want to begin by singing a song in Hindi that I learned recently. I did not sing during the time before 7 o'clock because most of you have come prepared with beautiful songs. All of you look forward to that singing time. I didn't want to rob any of you of your time. So I thought I will rob myself of my teaching time a little and I will sing one song in Hindi for all of you. यस और जिस प्रकार से हमारे प्रिय अंकल जी
7 बजे से पहले वो गीत का तैयारी करके आए थे, लेकिन उन्होंने जब प्रिय भाइयों-बहनों को देखा कि वो भी तैयारी के साथ आए हैं गीत गानों के साथ, इसीलिए मैंने उचित समझा कि मैं आप लोगों का समय नहीं चुराऊँगा, वरन मैं अपने जो शिक्षा देने का, टीचिंग देने का समय है, उसको मैं चुरा करके उसमें जो गीत हिंदी मैंने तैयार किया है, उसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और गाना चाहता हूँ। All right. This is a song I learned very recently and a song that I like very much. And I'm not a person who knows Hindi very well. I can't read or write Hindi. I've written it in English. I heard it, I wrote it in English, and I'm going to sing. So please pardon me. If there are mistakes, I will try my best not to make any mistakes. But if there are mistakes, please bear with me. और मैं एक हिंदी जानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मेरी हिंदी मातृभाषा है, वरन उसमें जो गीत है वो मैंने बहुत समय पहले सीखा था, जिसको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। और उसके साथ-साथ उस गीत को मैं जब गाता हूँ, तो अगर उसमें कोई त्रुटि और गलती होती है, तो दया करके मुझे क्षमा करना। Enjoy the song. This is all glory to God. यस। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है। सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। कितनी दूरी थी खुदा से इन गुनाहों के सबब। कितनी दूरी थी खुदा से इन गुनाहों के सबब। फासले जो मिटा दे, एक तेरा नाम ही है। फासले जो मिटा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। हे मसीहा, तेरी राहों पे मैं चलना चाहूं। हे मसीहा, तेरी राहों पे मैं चलना जाऊं। मुझको चलना, मुझको चलना, मुझको चलना जो सिखा दे, एक तेरा नाम ही है। मुझको चलना जो सिखा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। कौन तोड़ेगा ये जंजीर गुनाह की, यीशु। कौन तोड़ेगा ये जंजीर गुनाह की, यीशु। मखलिसी जो दिला दे, एक तेरा नाम ही है। मखलिसी जो दिला दे,
एक तेरा नाम ही है जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है. To God be the glory. Thank you. अमेजिंग थैंक यू, अमेजिंग थैंक यू. इतना सुंदर प्यारा गीत थैंक था, यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद. Thank और you. भाई साहब मैं बहुत आपको ही बताना सुंदर गीत चाहता था हूँ, आपका, बहुत ही प्यारा, दिल को छू गया। और ये गीत जैसे कि हमारे बीच में कुछ कोरस होते हैं, कुछ छंद होते हैं, लेकिन ये गीत जो है एक कव्वाली होती है, उन कव्वाली में से नहीं, ये गीत एक गज़ल के तरह से इसको Correct. ने क्या बोलते हैं, जो लेखक है उसने इसको संजोया है और Correct. प्योर गज़ल के ही वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और Correct. बहुत बहुत प्यारी आवाज़ के साथ में भी अंकल ने गाया है उसको, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस गज़ल को आज हमें सुनने को मिला। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा इसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग हुआ तो इसको मैं भी सीखूँगा और गाऊँगा। And मैं चुरा no, लूँगा I will, अंकल का I will, I will share that with you. I learned it from the YouTube. It's a ghazal only, but या it's a beautiful ghazal, and that is why I thought I'll sing it. I'm glad you liked it, so I will share you that link, Deepu. थैंक यू अंकल, श्योर। All right. So thank you for patiently listening to me, and I'm glad you didn't run away. You didn't switch off and run away. So thank you all for that. Okay. या या Now, last week, very abruptly, my Wi-Fi got erupted, so I could not continue. My apologies for that. We will continue from last week where we left off. और मैं पिछले हफ्ते में ये हुआ कि जो मेरा वाईफाई था वो अपने आप बंद हो गया। इसके कारण मैं अपने आप ही मीटिंग में से निकल गया। उसके लिए मैं इस हुई असुविधा के लिए माफी और क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया है, उस अध्ययन को जहां हमने छोड़ा था फिर से वहीं से आरंभ करते हैं। You see, I was reading while I was preparing this study, I was reading and something of C.H. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, what he said captured my thoughts. So I want to share that with you. और जब मैं इस अध्ययन का तैयारी कर रहा था तो मेरे मन को जो जीत लिया और भाया वो C.H. स्पर्जन हैं, और उसके विचार ने मेरे मन को झकझोर दिया है। और उस बात को जो मेरे मन में बोझ डाला उसने, उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। He says that the life that a man lives is more impactful on others than what he says. उस C.H. स्पर्जन ने इस प्रकार से कहा, एक मनुष्य जो अपने जीवन को जीता है उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति के जीवन पर जो वो कहता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। And he goes on to say that when others look at a particular man, when they notice him, they notice what he does, which is equivalent to dollars, let us say rupees. Okay. When a person looks at Sam Abraham, the way he conducts himself, they equal his action to rupees and his words equal to paisas. You know the difference, no, between rupee and paisa. Paisa is of less value, rupee is of high value. Nowadays, we don't have paisas, but in those days, few years back, I think five years back and all, we had paisas, naya paisas, atana, charana, all that we used to have. So what Spurgeon is saying is, when a man looks at one person as how he behaves, how he acts, that is equivalent to rupees, and whatever he says is equivalent to paisa. You see how important an action is.
और मेरे प्यारो, आप देखिए, हम लोग जो वर्तमान में जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं, उस उदाहरण से के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। C.H. स्पर्जन इस प्रकार से कहते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से जीवन बिताता है, उसकी जीवन शैली मानो रुपए के बराबर की मूल्यवान होती है, लेकिन वो व्यक्ति जो कहता है वो पैसे के बराबर उसकी क्या होता है, मूल्य होता है। ये इसलिए मेरे प्रिय, क्योंकि पैसा में और रुपया में हम लोग अंतर भली भांति जानते हैं। कुछ साल पहले पैसा चलते थे और उसके बाद रुपया भी चलते थे, और आज सिर्फ रुपया है और पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे की जो मूल्य है वो निचला है, कम होता है, लेकिन रुपए का मूल्य है वो ज्यादा होता है। उसका रुपए का जो मूल्य है वो ज्यादा, क्योंकि वो एक रुपया है। उसी प्रकार से C.H. स्पर्जन कहते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन शैली रुपए के मूल्य के बराबर होती है, और लेकिन जो वो कहता है उसके शब्द पैसे के बराबर उनका मूल्य होता है। आप अंतर को समझ पाए होंगे। Yeah, that's right. Now, one more thing Spurgeon went on to say. He said that between the life that he lives and the doctrine that he speaks, when others look at a person, they will accept what he does, his practice, and they will reject his preaching. और इसीलिए वो कहते हैं कि जो मान के चलो, जो व्यक्ति जिस डॉक्ट्रिन का या सिद्ध शिक्षा को वो दे रहा है, उस शिक्षा को वो व्यक्ति जो वो कह रहा है उसको ज्यादा ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उस शिक्षा को जिसको वो दे रहा है, अगर उस पर वो चलता है, मतलब उसको प्रायोगिक जीवन में लागू करता है, उस शिक्षा को लोग ज्यादा ग्रहण करते हैं और वो एक नजरिए में भी समझ जाते हैं। Wonderful. All right. The reason I mentioned this to you right now is we are studying Psalm 34. We are studying from the life of David. These Psalms all are written based on David's experience. And when you talk about experience, these are real life situations. This is not story, but this is historical, something that has happened in one's life. He's reciting it. It's like a testimony. All right. He's reciting it and then he is singing it through a psalm. So it is important that we follow all that David speaks about in his psalm and apply it in our lives. That's the reason I mentioned that to you. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं ये बात इसीलिए कहा हूँ क्योंकि इस बात को मुझे स्मरण आया है कि हम लोग भजन संहिता 34 का अध्ययन कर रहे हैं, और उस भजन संहिता 34 में जो दाऊद राजा का जीवन है, जिसके विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और दाऊद का जो जीवन है वो कोई कहानी नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है, वरन इतिहास में घटित घटना है जो सच्ची है, और उसी के आधार पर मैंने इस बात को रखा है। You see, another important thing is all of you here, those of you who are brothers and sisters who are on the Zoom, in some way, each of you are leaders. When I say leaders, not only in the assembly, not only in the place where you work, in your homes, in the society, because you are leading other people, which means your children are following you, your grandchildren are following you, others are looking at you. So you all are leaders. We must remember that as we study, do these studies. और जब हम इस अध्ययन को करते हैं, इस चीज को खास तौर से हमें याद रखना है। वो बात क्या है, जब मैं कहता हूं कि हम लोग किसी न किसी तरह से व किसी न किसी रूप में एक अगुए हैं। अगुए मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य कलीसिया में अगुवाई करने वाले लोग ही नहीं हैं, वरन इस बात को स्मरण रखिएगा कि हम जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नाती पोते हैं, हमारे जो घर के परिवारी जन हैं, जो हमको देख करके हमारा अनुकरण करते हैं, इसका मतलब है हम उनके क्या हैं, वो लीडर हैं। You see, there was a general. General is a topmost person in the army. All right. So there was an army general who had taken command of an school, an army school somewhere in Germany.
और मैं एक व्यक्ति जो आर्मी का, मिलिट्री का जो जर्नल होता है, वो क्या होता है, उसमें मिलिट्री में सबसे ऊंचा ओहदा उसको मिला है। All right. और And जनरल, yeah, go ahead, go ahead. यस अंकल, He took command, which means he took the responsibility. He was posted as the responsible officer for an army school. अंकल प्लीज रिपीट वन सेकंड बिकॉज देयर Yeah, he वाज ए was कॉल। okay. He was chosen as a responsible person, like the principal for an army school. Can you hear me? Deepu, can you hear me? दीपू म्यूट है। वो म्यूट हो जाता है। और उससे अंकल को प्लीज, Yeah. सॉरी। No. He was chosen as the principal of an army school and was asked to take charge in Germany. और उसको, उस जनरल को क्या हुआ, जो आर्मी के स्कूल होते हैं उसमें उसको जिम्मेदारी दिया गया, और वो जर्मनी में वो स्कूल था। When he went to that army school, the first thing that he saw, that place was looking very old. There was no whitewash. Everything was broken. Lot of rubbish was lying everywhere. Although it is an army school, he still found lot of things which did not make the building look good at all. और जैसे ही उस स्कूल में, यद्यपि वो आर्मी का स्कूल भी था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस स्कूल में तमाम गंदगी फैली हुई थी, तमाम जो है दाग धब्बे और गंदगी, और टूटा हुआ था, जर्जर अवस्था में वो मकान था। यद्यपि वो आर्मी का भी था, लेकिन फिर भी जब से ही ये व्यक्ति जनरल वहां पर जाता है, तो इतनी सारी कमियों को, खामियों को उसने उसमें ध्यान नोटिस किया। You see, the best thing for him to have immediately done is to call the soldiers, those people working under him. He could have called them and asked them, do this, do that, do this, clean up all these things by such and such time. All this has to be done. That is the easiest thing for him to have done. अब इस बात को देखिए, चूंकि ओहदे में वो एक जनरल है, और अगर वो एक आदेश देता सैनिकों को कि हे, आकर के तुमको ये करना है, तुमको इसको सफाई करना है, जल्दी से साफ सफाई कर दो, क्योंकि वो उसको ओहदा मिला है और वो ऐसा कर भी सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। You see, in the army and all that, even an ordinary officer will have orderlies, will have people working under him. All those from the army itself, you'll have those junior level people always working. And this man is a general. He would have had a whole battalion of people working for him, but he did not do that. और इस बात को देखिए, जिस प्रकार से जो आर्मी होता है उसमें इस प्रकार का लोगों को ओहदा दिया जाता है, इस प्रकार से उनको जो है उनके अधीनता में बहुत सारे सैनिक और छोटे और सैनिक रहते हैं। और आप तो सोच करके देखिए, ये तो एक जनरल था, और ये जनरल क्या है, वो उसके अधीन में सारी बटालियन ही उसके अधीन में रहती है, वो किसी को भी आदेश दे सकता था। Correct. But you know what this general did? You know what he did? We went to his house. He picked up paint brushes. He picked up brooms. He picked up whatever equipment is required. What is that? Whatever equipment is required to clean up the place. He took everything. He went to his own quarters, the place where he stays. He started cleaning up. He started painting. He started whitewashing. He started doing everything himself. और लेकिन पता है आपको, इस जनरल ने क्या किया, इस जनरल ने किसी को ना कह करके वो घर गया, जाने के बाद में वहां से झाड़ू, पोंछा, जो पुताई करने के लिए पेंट और ब्रश और झाड़ू, ये तमाम चीजों को, जो सफाई करने वाली तमाम चीजें हैं, उनको लेकर के वो गया, और जहां पर वो रह रहा था वहां पर स्कूल में जाकर के क्या करने लगा, वो स्वयं ही वहां की पुताई, साफ सफाई, पोंछा लगाना इत्यादि कार्यों को वो स्वयं ही करने लगा। When the people saw, when the officers saw the general himself doing it, all the other officers, all the other people immediately started cleaning up their places. They started cleaning up the offices. They started cleaning up the school, the rooms,
the classrooms, everything, whichever is the surrounding area where they were living, they immediately cleaned it up. और देखिए मेरे प्यारो, उसके बाद में उसका प्रभाव क्या हुआ? जैसे ही बाकी जो सैनिकों ने देखा, अरे हमारा जनरल साफ सफाई कर रहा है, वो तमाम सब के सब वो सैनिक उसको देख करके अपने अपने घर में सफाई करने लगे, ब्रश करने लगे, पुताई करने लगे, पोंछे लगाने इत्यादि कार्यों को वो स्वतः ही उनको देख करके वो करने लगे। You see, now within no time, that whole place, that army school where the general went to take over, because he led by example, the others also followed him. Within no time, that place was looking clean and spick and span, and it was looking so beautiful. और देखिए मेरे प्यारो, क्या हुआ, इस जनरल ने जाकर के उन लोगों के सामने एक नमूना बन करके जीवन जिया और दिखाया, और उसके बाद में कुछ ही क्षणों में, ज्यादा समय ना लगता, वो बता रहे कुछ ही क्षणों में क्या हुआ, वो जो स्थान एक समय बुरा था, गंदा था, एकदम से चमचमाता हुआ साफ सुथरा दिखने लगा, और उसको जनरल को देख करके सब के सब साफ सफाई करने लगे। You see, these are two examples, one from C.H. Spurgeon and one about this army general. I thought it's important to share that with you because there are two things we learned from this example. और ये उदाहरण एक सीएच स्पर्जन का, और दूसरा ये जो एक जनरल का उदाहरण मैं उचित समझा कि आप लोगों के साथ साझा करूं, क्योंकि इससे हम दो जीवन के महत्वपूर्ण निर्देशों को, सिद्धांतों को समझते हैं। One is others look at the way we live, not at what we speak or teach or preach. They look at the way we live. और जब दूसरे हमको देखते हैं, वो हमारे जीवन शैली को, बतौर तरीके को, किस तरह से हम रहते हैं, उसको देखते हैं, ना कि हम क्या कहते हैं। और दूसरा जो जनरल के द्वारा हम लोग सीखते हैं, दूसरा वो ये है, The second one is that we lead by example, not tell the others, do what, this is what you have to do, that is what you have to do. We take the initiative, we lead, and when we start doing things, leading by example, doing things, the others will also start doing whatever we want them to do. और मेरे प्यारे इस बात को देखिएगा, दूसरा उदाहरण उस जनरल से हम ये सीखते हैं कि हम दूसरों को कहने से पहले, क्या हम कहते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उससे करने से पहले हमें खुद व स्वयं ही उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है, मतलब दूसरों के सामने नमूना बन करके जीना है, जिसके द्वारा दूसरे लोग हमें देख करके स्वतः ही वो अपने आप को संवारने लग जाएंगे। All right. Now, last week when we signed off, when this study got abruptly stopped, we were on verses 19 to 20 of Psalm 34. 34 भजन संहिता का जो 19वां और 20वें वचन में हम लोग थे, जब मेरा इंटरनेट कट गया था। And verse 20 says, He keepeth all his bones, not one of them is broken. और वचन 20 में इस प्रकार से लिखा है कि उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। You see, and what I was saying last week, which I'm trying to recollect and refresh all of you, is God does not make life easy for believers. और जिस चीज को मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, वो ये है कि परमेश्वर विश्वासियों के लिए जीवन को आसान और सरल नहीं बनाते, But he does give them help at the time that they need it. लेकिन वो जब उन्हें जरूरत होती है तब उनको सहायता जरूर करते हैं, मदद जरूर करते हैं। But the fact remains that life is often very hard for God's people. लेकिन ये जो सत्य हमेशा बना रहता है कि परमेश्वर के लोगों को जीवन बहुत कठिन होता है। You see, now verse 19 says, He keepeth all his bones and not one of them is broken. That pointedly refers to the Lord Jesus Christ. और इस बात को हम लोग देखेंगे कि जो भी जीवन का पहलू है, उसको यदि हम देखेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर निर्देशित करता है। That is what we read now. Keeping this verse at the back of your mind,
turn to John's Gospel, chapter 19, and read verse 36. You will find the similarity between these two verses. आप इस वचन को अपने मन में रखते हुए यूहन्ना उसका 19 का 19:36. 19 का 36 आप लोग पढ़िएगा, तब आप एक समान वचन को यहाँ पर पाएंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, ये बातें इसीलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ऐसी हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। You see, now how true this is. This particular verse is a messianic verse. Psalm 34 verse 20 is a messianic verse. See the fulfillment of that in John 19:36. आप देखिए जो 19 का 36 जो यूहन्ना 19 का 36 है, वो जो मसीहा के विषय में दी हुई एक भविष्यवाणी जिसको हमने भजन संहिता 34 का 20वीं आयत में पढ़ा है। You see, after this, the body of the Lord Jesus Christ, the soldiers tried to break the body of the Lord Jesus Christ. They did it for the other two what is that? The other two thieves that were hanging. They broke their legs, but they never touched the body of the Lord Jesus Christ to break it in any way. और देखिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं किसी भी तरह से ये जो दोनों जो सैनिक लोग थे, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उनके साथ-साथ और भी जो 2 सैनिक थे, उनको भी क्रूस पर चढ़ाया था। हम इस बात को गवाह हैं कि देखा भी है कि उन दोनों के घुटनों को उन दोनों चोरों के घुटनों को सैनिकों ने तोड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बीच में चढ़ाए गए थे, उनको पर किसी भी तरह से कोई चोट नहीं की, व ना ही उनके किसी पैर को तोड़ा। The Roman practice is whenever anyone is hung on the cross as a punishment, they will break their legs so that they die faster. और रोम का जो एक इस प्रकार का नियम था कि अगर जो कोई भी व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो वहां पर जिससे कि वो जल्दी मर जाए, उस पर जिसको चढ़ाया जाता है, उसके घुटने या जो पैर होते थे, उनकी हड्डी तोड़ दी जाती थी। That is why they broke the legs of both the thieves hanging on the side of the Lord Jesus Christ. इसीलिए उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह के अगल-बगल में जो चोर चढ़े हुए थे क्रूस पर, उन दोनों के जो पैर हैं, घुटने हैं, उनकी हड्डी को तोड़ डाला। They could have done it to the Lord Jesus Christ, but God stopped them. God kept the body of the Lord Jesus Christ safe. लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने उस कार्य को नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया था, भविष्यवाणी की थी, उसके अनुसार उनको रोके रखा कि वो ऐसा ना करने पाए। And God raised him from the dead on the third day. और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मृत्यों में से जीवित किया। All right. So we must keep this in mind, that God will also do the same thing for us. He will protect us. He will keep us safe until we reach heaven. और इस बात को हम लोगों को ध्यान देना है और मन में विश्वास करना है कि जब तक हम प्रभु में व महिमा के साथ महिमा में ना पहुंच जाए, तब तक वो हमारे एक भी उसकी हड्डी की रक्षा करने वाला Now, प्रभु it है। does not matter what happens to our bodies, because our spirits or our soul will be kept safe with God in heaven. लेकिन मेरे प्यारों, हमारे शरीर के साथ क्या होगा इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा जरूर प्रभु के साथ स्वर्ग में सुरक्षित रहने वाली है। Because we all know that heaven is where God lives. क्योंकि हम इस बात को हमेशा जानते हैं कि वो स्वर्ग है जहाँ प्रभु रहते हैं, परमेश्वर रहते हैं। And we also know that God will raise our bodies, but it will be a glorified body. We do not know how that will happen, but the scripture says we will be raised in our glorified bodies. इस बात को हम लोग जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हम जो है शरीर में जीवित रहेंगे, लेकिन हम बदल जाएंगे। यद्यपि हमारे शरीरों का क्या होगा, हमारे उसके विवरण में कुछ में नहीं मिलता है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि हम जब प्रभु महिमा के साथ आएगा, तब हम उसके साथ महिमामय शरीर को लेकर के पुनः उसके साथ जीवित हो जाएंगे। All right, now let's go back to Psalm 34 and we read verse 21. आइए अभी हम लोग भजन संहिता है उसमें आ जाते हैं, 34 में 21वीं आयत को पढ़ लेते हैं। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे।
All right. Now, in Australia, the natives of Australia, the original people who were in Australia, everyone who has come to Australia are settlers. They come from different places, different countries, but the original people of Australia are called the Aborigines. और ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले, वहाँ पर रहने वाले जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ के नागरिक थे, स्थानीय नागरिक थे, वो अबोरिजिनल्स को कहते हैं। Correct, correct. Now these Aborigines have a weapon called as a boomerang. और उन अबोरिजिन के पास में एक हथियार जिसको बूमरैंग कहा जाता है। Now this boomerang is made out of wood. और ये बूमरैंग है, ये लकड़ी से बनता है। And it is made in the form of a V, the English letter V, you know. It is almost in the form of a V. It is made in the shape of a V. और जिस प्रकार से अंग्रेजी का अक्षर V फॉर वैन होता है, उसी अक्षर के नुमा, उसी के अनुसार, उसी के सेम हूबहू उस लकड़ी का उस हथियार को उन्होंने बनाया। How they use it is they will hold one end of the boomerang, the one that is shaped in V. They will hold one end and they will throw it away from them. That is, suppose Deepu is standing in front of me. I will take the boomerang, hold one end of it, and I will throw it towards Deepu. और पता है वो उसको उस हथियार का इस्तेमाल कैसे करते थे वो लोग? उस जो भी आकार का जो हथियार होता था, उसका एक तरफा, उसको एक सिरा पकड़ करके उनके सामने जो भी शत्रु खड़ा रहता है, मान के चलिए कि अगर सामुएल अंकल के सामने दीपू खड़ा है, तो सामुएल अंकल को यदि मुझ पर कुछ प्रहार करना और वो हथियार उनके बूमरैंग उनके हाथ में है, तो क्या करेंगे? उस बूमरैंग का एक सिरा पकड़ करके मेरी ओर जोर से खींच करके मारेंगे। And you know what the characteristic of a boomerang is? When you throw it, when I throw it towards Deepu, it will not go and hit Deepu. It will go up to a certain distance and it will turn and come back towards me. और आपको पता है वो बूमरैंग जो हथियार है उसकी क्या विशेषता है? उसकी ये विशेषता है कि अगर अंकल ने जो है, सामुएल अंकल ने मेरे ऊपर वो हथियार को प्रहार किया है, तो वो हथियार क्या करेगा? मेरे ऊपर प्रहार ना करके वो कुछ ही दूरी पर जाएगा और उसके बाद पुनः वो लौट करके साम अंकल के पास दोबारा आ जाता है। That is why it is called boomerang, which means it goes forward, but it comes back and hits the person who threw it. और इसीलिए उस हथियार को बूमरैंग कहा जाता है, क्योंकि उसकी विशेषता ये है कि जब कोई भी व्यक्ति उसको किसी पर फेंक कर मारता है, तो वो चला जाता है, दूर 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 तक चला जाएगा। उसके बाद उसी दिशा में वो घूम करके पुनः जिस व्यक्ति ने उसे फेंक करके मारा था, उसी को आकर के पुनः वो चोट करेगा और वार करता है। In English, there is a word called boomerang, and the meaning of boomerang is the same thing, which means when people generally say, be careful, don't do that, it will boomerang, meaning if you do this, you will suffer, it will hit back on you. That is the meaning. So in English, they generally use this word boomerang. और ये जो बूमरैंग शब्द है अंग्रेजी में, अधिकतर लोग जब कोई किसी के प्रति बुरा करता है, तो अधिकतर लोग उन्हें इस प्रकार से याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे, तुम ऐसा मत करो, यह आपके लिए बूमरैंग बन जाएगा। You see, in verse 21, the first portion says, evil shall slay the wicked. You see that? और आपने उस वचन को पढ़ा, क्या लिखा है उसमें कि वो बुराई करने वाले क्या हो जाएंगे? बुराई के द्वारा मारा जाएगा। दुष्टी जन बुराई के द्वारा मारे जाएंगे। Well, what does that first portion read, Deepu? Evil shall slay the wicked. Verse 21, the first portion. Yes, uncle. दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। दुष्ट That अपनी is बुराई। right. Okay. Which means the evil that bad men do is like a boomerang.
इसका मतलब ये है कि ये जो बुराई करने वाले मनुष्य हैं वो बूमरैंग के समान होते हैं। इसका It मतलब comes, yeah, it comes back to them and it hurts them. और जो भी बुराई वो करते हैं वो वापस लौट करके पुनः उन्हीं के पास आता है और उन्हें ही वो चोट पहुंचाता है। Sometimes it might take a long time, but it will definitely happen. हो सकता है इसमें कुछ समय लग जाए, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना कि वो अवश्य होगा। You see, this is how God punishes people, the wicked people. आप देखिए मेरे प्यारों कि परमेश्वर किस तरह से लोगों को जो है प्रताड़ित उन्हें सजा देता है। You see, I was reading this illustration while preparing this study, and a person writes that one of the most, what should I say, one of the worst cases of hatred, he mentions he came across a situation which demonstrate the worst case of hatred towards another person. और जब मैं इस चीज को तैयारी कर रहा था इस संदेश को, तब मेरे मन में एक उदाहरण याद आया कि जो एक व्यक्ति जो नफरत करता है, नफरत ही उसे काटती है। All right. Now, how does it reflect? He quotes an example that there was a man who wrote a will. You know what a will is? Before a person dies, his entire property has to be given to his son, his daughter, his wife, or whoever it has to be given. He will write. That is called a will. So this man wrote something drastic in his will. और ये जो व्यक्ति था अंत समय उसका आ गया था, और ये जो वसीयतनामा क्या होता है? जब एक व्यक्ति मरने वाला होता है, उस समय में उसकी जो इच्छा होती है, उसकी जो संपत्ति है वो किसको देना चाहता है, बेटा को, बेटी को कितने हिसाब से देना चाहता है, उसके हिसाब से वसीयतनामा वो जब लिखवाता है, ये उसकी इच्छा होती है जो अपने बच्चों के प्रति अपनी संपत्ति के साथ वो रखता है और मरने से पहले वो उनको देना चाहता है। And this man, I understand, wrote the worst will ever in to the knowledge of any person. That's the और worst will to be written. और हम इस बात को देखते हैं कि मेरे समझ के अनुसार वह ऐसे किसी भी लोगों ने इतना खराब और गलत इच्छा को उसने उस वसीयतनामे में लिखवाया। And he wrote this will for his only 2 daughters. और उसने अपनी इच्छा को केवल और केवल अपनी दोनों बेटियों के नाम लिखा। Why did he write that will like that? क्यों उसने अपने इस प्रकार की इच्छा को लिखा? Because they did not respect, they did not respond, they did not regard their loving father. The father loved both his daughters so much, but the daughters did not reciprocate that way. That is why he wrote this vicious will. और इसलिए हम देखते हैं क्योंकि वो अपनी दोनों पुत्रियों से बहुत ही ज्यादा प्रेम रखता था, और यद्यपि उन्होंने उसके प्रति रिस्पेक्ट व आदर सम्मान नहीं किया, और यद्यपि उसके प्रति उन्होंने किसी प्रकार का आभार प्रकट नहीं किया, इसीलिए क्योंकि वो जो अंतिम व्यक्ति था वो अपनी दोनों पुत्रियों के नाम अपना सारा इच्छा से जो वसीयतनामा है वो लिख देता है। And you know what was written in the will? आपको पता है उस इच्छा में क्या लिखा था? This father wrote the will for both his daughters, and this is what he wrote. He said, first of all, I leave a sum of $1 to both of them. और उस इच्छा में उसने लिखा है, आपको पता है उस इच्छा में क्या लिखा है? उसने अपने वसीयतनामे में वो कहता है कि मैंने इन दोनों बेटियों के लिए $1 रख छोड़ा है। $1 will be something like 10 rupees for us, or if you convert $1, it's 84 rupees. So the first thing we had written is, I leave a sum of $1 to both my daughters. Normally, when you write a will, it is into lakhs and crores of rupees. और देखिए सामान्यतः जब कोई भी व्यक्ति वसीयतनामा लिखवाता है तो क्या होता है, वो लाखों में और करोड़ों में होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, उस अपने वसीयतनामे में अपनी दोनों बेटियों के नाम एक जो $1 है उसको रख छोड़ा है। सामान्यतः उसकी Yeah. कीमत
भारतीय रुपयों में 10 रुपए होगी, लेकिन अभी तो ये 84 रुपया है $1 की कीमत। All right. Now, not only $1 each, but he also mentioned, apart from the $1 to both my daughters, I'm also leaving a father's curse, C-O-R-S-E, curse. और केवल इतना ही नहीं, वरन वो ऐसा नहीं कि उनके पिता ने उनके लिए केवल $1 लिखा हो, वरन उस पिता का श्राप श्राप भी उनको नाम उसने वहां पर लिखा है। And you know what the curse was? He had written in the will. You know what the curse was? आपको पता है वो श्राप क्या है जिसने उसे अपनी सबश्चितनामे में लिखवाया? He says they have to live a life of misery, which means absolute poverty. They have to live a life of absolute poverty, unhappiness, and sorrow. और इसका मतलब है कि उन दोनों बेटियों का जीवन में वास्तविक गरीबी से होकर के उनका जीवन गुजरेगा। And then he went on to write that their deaths they should die soon, and they should die a torturous life, which means their end should end in a torturous way. और इसका मतलब है उसके बाद फिर वो लिखता है कि उनका जो जीवन है वो भी बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, और वो बहुत ही ज्यादा तकलीफों से भरा हुआ और टॉर्चर से भरा हुआ जीवन उनको मृत्यु मिले। And you know, the last line that he wrote in the will is the most evil, most wicked will ever written. और आपको पता है वो आखिरी इच्छा जो उसने लिखी है वो सबसे ज्यादा दुष्ट और सबसे ज्यादा बुरी इच्छा उसने अपने वसीयतनामे में दर्ज की। He wrote, may their souls rest in hell and suffer the torments of the condemned for eternity, which means, in other words, let them die in hell and suffer in hell, the lake of fire from which you and I have been saved. So he wrote, let the souls of both my darling daughters rest in hell and suffer the torments of the condemned for eternity, lifelong. और इस बात को देखिए मेरे प्यारो, वो सबसे बुरा और सबसे दुर्भाग्य जो उसने लिखवाया उसमें संबंध में, वो क्या था पता है? उसने लिखा कि इन दो मेरी प्रिय बेटियों की आत्मा कहाँ पर जाए? नरक में चला जाए, सदैव सदा के लिए वो नरक में, भाड़ में चला जाए। भाड़ में जाने का मतलब समझते हैं? नरक में जाने का मतलब समझते हैं? वो जहाँ पर नरक का जो कीड़ा कभी मरता नहीं है, आग कभी बुझती नहीं है, ऐसी तड़पन में, ऐसी कष्ट और पीड़ा से जहां से मैं और आप बचाए गए हैं, उस पिता ने लिखा कि इनकी आत्मा वहां पर नाश हो जाए और दर्द और कष्ट और पीड़ा से गुजरे। You see, such are the wicked people that are around us. इस प्रकार के दुष्टी लोग इस संसार में हमारे आसपास हैं। That is why David writes here in verse 21, evil shall slay the wicked. और इसीलिए हम लोग देखते हैं वचन 21 में वो कहता है कि वो जो बुराई है, दुष्ट जन की बुराई, उसी को मारेगी। Let's read another verse, Psalm 7 and verse 15. आइए हम एक और वचन को पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 7 उसका 15 आयत। Psalm 7 and verse 15. 15 आयत लिखा हुआ है, उसने गड्ढे खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाए थे उसी में वह आप ही गिरा। You see, that is the boomerang effect of the wicked. और यही मेरे प्यारो ये वचन जो है वो बूमरैंग का प्रभाव हम कह सकते हैं। All right, okay. Now we'll go on to the last verse of Psalm 34. आइए हम लोग भजन संहिता 34 का आखिरी वचन में आएंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। All right, now as per this verse, if there is anything wrong that we have done, we have to ask forgiveness from God.
इस बात को, इस वचन के अनुसार हम देखें तो यदि हमारे जीवन में कुछ भी गलत या गलती हमने की है, उसके लिए हमें परमेश्वर से माफ़ी माँगना है। and God will forgive us. परमेश्वर हमें माफ़ करेंगे And He will not punish us for that. और उसके लिए परमेश्वर हमें जो है सज़ा नहीं देंगे, दंडित नहीं करेंगे। And like the boomerang, if if you have any unconfessed sin, if you have not confessed whatever wrong you have done and sought forgiveness from the Lord, then that wickedness will hit back the person who did it like a boomerang. और आपको पता है, अगर कोई भी पाप ऐसा रह जाता है जिसको हमने क्षमा नहीं माँगी है और वो पाप, वो गलती क्या करेगी? उस व्यक्ति को जिसने ये किया है, उस बूमरैंग के समान वो दूर तक तो जाएगी, लेकिन कुछ दूरी पर से वो वापस लौट करके उसी व्यक्ति को मारेगी जिसने वो उधर मारा था। You see, that verse says, the Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. Meaning, David is closing the psalm by saying that the Lord will save every soul of his servants, and then none of them that trust in him will be desolate. Desolate meaning helpless. और इसीलिए यहाँ पर देखिए वचन क्या कहता है, दाऊद किस तरह से इस भजन को समापन करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के उनको बचाता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो किसी भी तरह से ना तो उन पर कोई बुराई आएगी, ना ही कोई बूमरैंग का प्रहार होगा, वरन परमेश्वर उन्हें हर बुराई से छुड़ा करके, बचा करके क्या करेगा? उन्हें दोषी ठहरने से बचाएगा, उन पर कोई दोष नहीं लगने देगा। Yes, remember, brothers and sisters, this psalm is a testimony. Now, David is testifying in front of you. Today, if he's alive and he comes to us and talks to us, he will say the same thing. And what he will say? He will say, none of you that trust in God will ever be helpless, will be desolate. You know, that's what और he's saying. यस, और अगर मान के चलिए वो दाऊद अगर हमारे सामने होता तो क्या करता? वो इसी बात को कहता कि जो कोई भी परमेश्वर के शरणागत हैं उनमें से कोई भी निराश नहीं होगा, उनमें से कोई भी है ऐसा नहीं जाएगा कि जिसकी सहायता ना हो। परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उसको दोषी ना, उस पर दोष नहीं लगने देगा। I was reading a beautiful example as an illustration for the last verse, which is the last illustration I will use before we close. और There was a go ahead. समाप्त करने से पहले एक नमूना, एक उदाहरण मैं इस वचन के आधार पर पढ़ रहा था, इसको मैं कह करके समाप्त करूंगा। You see, there was a person called as Roger Sims, and he was retiring from the army. So May 7th was the last date for him in the army, and that is a day which he will never forget in his life. और एक रॉजर सिम नाम का व्यक्ति था जो आर्मी में था और वो आर्मी में उसका कुछ ही दिन बाकी, 7 दिन बाकी रह गए थे जब उसको रिटायर होना था और उन दिनों को वो अपने जीवन काल में कभी भूल नहीं सका। And the day he retired is May 7th. और 7वां दिन था वो, उस दिन उसको रिटायर होना था। And the day he retired, he carried his heavy suitcase and he was very tired and he walked and came to the road. और उसके बाद जब उसको रिटायर हुआ तो उसने अपना जो सूटकेस था उसको लेकर के रोड तक आया क्योंकि वो बक्सा बहुत भारी था। And he was wearing his uniform, his army uniform. और वो अपनी आर्मी का जो वर्दी है उसको पहने हुए था। He was so eager to get back home that he forgot to remove his uniform. So he walked to the road to take a vehicle and he came in his uniform carrying his heavy box and very tired. और ये जो व्यक्ति है वो इस बात को, क्योंकि उसे जल्दी घर पर पहुंचना था, इसीलिए उसने अपना सामान उठा करके वो सीधा चल पड़ता है। इस बात को वो भूल गया कि उसे उस वर्दी को उतारना था।
So normally when you stand on the road, if you want a lift, what do? You show your thumb, isn't it? And you so can you give me a lift either to a two-wheeler or to a car? Sometimes you show your thumb and say, can you give me a lift? So this is what this Roger Sims, the army retired person, came. He was standing in the road with his heavy luggage and uniform. He was showing his thumb and asking those who are going by, can you give me a lift? और आपको पता है जब कभी भी हम लिफ्ट माँगते हैं तो क्या करते हैं अपना अंगूठा दिखाकर अपना हाथ बढ़ा करके उनसे लिफ्ट माँगते हैं, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया वाहन से। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी रोड पर खड़ा हुआ, लोगों से लिफ्ट माँग रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? After waiting for a long time, a beautiful black car, he saw it coming. When he showed his thumb, that car was almost coming close to him to stop. और आपको पता है उसी समय पर एक कार उस रोड पर जो काले कलर की थी, बहुत ही सुंदर कार थी और जो उसकी ओर उस रोड पर चली आ रही थी। इस व्यक्ति ने उससे भी मदद की गुहार लगाकर लिफ्ट माँगी। You see, he first thought that car will not stop because it was speeding. But when that man noticed this army officer was asking for a lift, he slowed down the car and stopped exactly where the army man Roger Sims was और standing. पहले तो ये रॉजर सिम ने सोचा कि यद्यपि हो सकता है ये व्यक्ति क्योंकि बहुत तेज गति से आ रहा था और ये रुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने जो उस कार को लेकर के आ रहा था उसने देखा ये तो एक आर्मी का व्यक्ति है और ये मदद लिफ्ट मांग रहा है, तो उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी का जो रफ्तार था उसको कम करके जहां वो खड़ा था वहां रोक दिया। So the owner of the car who was driving the car, he opened the door. So there's Roger Sims, the army officer. He went behind, opened the dicky, put his heavy bag inside. Then he came to the front and sat down in the front along with the person who was driving the car, who was the actual owner of the car. और जो उस गाड़ी का मालिक था वो व्यक्ति क्या करता है अपना रोक करके गेट खोल देता है डिग्गी में। जो रोजर सिम्स था वो अपना सामान रख करके आगे की सीट पर आकर के बैठ जाता है। Now, the person who was driving was a very handsome man. He was beautifully dressed. He was dressed in his full suit. He was looking very, very handsome, very nice. He was looking tip top. That was who the driver was. और वो जो ड्राइवर था वो बहुत ही अच्छे से उसने ड्रेस किया हुआ था, कपड़े बहुत अच्छे सुंदर पहने हुआ था और वो टिप टॉप में था। So he looked at the army officer and said, "Oh, so you're retired. You're going home now." और उसने इस प्रकार से कहा, अरे तुम जो है रिटायर होकर के वापस घर पे जा रहे हो? He said, "Yes, I'm going home now." और उसने कहा, हाँ मैं अपने घर जा रहा हूँ। And then this Roger Sims asked the driver, "Are you going to? Where are you going?" He asked him. और उसके बाद रॉजर सिम से वो पूछता है व्यक्ति, कहाँ जा रहे हो आप? He says, "No, I'm going to Chicago." उसने कहा, मैं शिकागो जाना चाहता हूँ। But Roger Sims had to get off before Chicago. He had to get off before Chicago, that's Chicago, because that was where his house was. और उस शिकागो से पहले उसको उतर जाना चाहिए था क्योंकि जहां पर उसका घर था। And then while they were talking, Roger Sims asked the driver, "What is your name?" And that man said, "My name is Hanover." और उसने उसका रोजर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा, हैनोवर। Now, as his house was approaching with only half an hour for him to get down, he was thinking in his mind so many times the thought came to him, speak to him about the Lord Jesus Christ, speak to Hanover about the Lord Jesus Christ, to tell him about Jesus Christ. So many times the thought came coming, he kept postponing it and postponing it and postponing. Finally, with only 30 minutes before he could get off, he then thought, okay, now let me speak to Hanover about the Lord Jesus Christ. Then Roger Sims began speaking to Hanover about Jesus Christ. और उसने पता है रॉजर सिम्स ने वो उसके मन में बार-बार ये विचार आ रहा था कि मैं इस व्यक्ति से आकर के प्रभु यीशु का वचन सुनाऊं, लेकिन बार-बार वो उसको नजरअंदाज कर देता था। लेकिन अंततः जब वो अपने घर पर पहुंचने वाला ही था तब उसने सोचा ठीक है अभी मैं फाइनली उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस व्यक्ति से कह देता हूँ व कह सुनाता हूँ और वो उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कहना शुरू कर देता है। After he finished speaking, you know what Hanover did? Hanover slowed the car, went to a side and stopped the car. और जैसे ही उस आर्मी के व्यक्ति ने इस मसीह के बारे में कहा, इस व्यक्ति ने क्या किया पता है आपको? वो जाकर के गाड़ी को एक तरफ लगा करके, गाड़ी मध्य करके रोक लेता है। You see, why? Because Roger Sim asked him after speaking about the Lord Jesus Christ, speaking to the gospel, he asked Hanover, "Would you like to receive Christ as your savior?"
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में रोजर सिम्स बहुत से बात कर रहे थे, तब उसने कहा, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हो? As soon as this Hanover heard this, he slowed the car, went to the side and stopped it. और इस व्यक्ति ने जैसे ही सुना, उसने अपनी गाड़ी को एक साइड लगा करके गाड़ी को रोका और उतर गया। Roger Sims thought that, oh, he's finished. I'm finished now. He's going to ask me to open the door and to get out from my car. That was what he was thinking. लेकिन रॉजर सिम्स पता है क्या सोचने लगा, अरे अब तो मेरा समय आ गया है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, मुझे डांट फटकार करके मेरा सामान बाहर फेंक देगा और मुझे यहीं पर छोड़ जाएगा। But you know what? This Hanover was a businessman in Chicago. You know what this man did? He stopped the car, he bowed his head over the steering, and he received the Lord Jesus Christ as his personal savior. और आपको पता है उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने गाड़ी को रोक करके अपने सिर को स्टीयरिंग पर रखते हुए उसी समय पर यीशु मसीह को ग्रहण किया। आपको पता है शिकागो में ये व्यक्ति कौन था? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। Then Hanover looked at Roger and said, "This is the greatest moment in my life. This is the greatest thing that has ever happened to me in my life." और वो हैनोवर कहता है, हे रोजर सिम्स, ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महान अनुभव रहा है जो मैंने आज अनुभव किया है। All right. So on the Roger Sims' house came. He got off. He went, and after 5 years, Roger got married. He had a 2-year-old son. He was doing his own business, and it so happened that he had to visit Chicago on his business trip. और जैसे ही उसके कुछ समय बाद उसका शादी हुआ, उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ एक दिन ऐसा हुआ जो अपना खुद का व्यापार चालू कर दिया था रोजर सिम्स ने, वो जाकर क्या हुआ, एक दिन उसको शिकागो में जाना पड़ गया। At that time, he remembered that this man, Hanover, had given him a business card in Chicago. So he thought, since I'm going to Chicago, let me go and meet him and then take some help from him. Deepu? Deepu, can you hear me? Yes, uncle, actually the network was disconnected. I'm sorry. Okay. Okay. You heard me or you didn't hear me? Yeah, I didn't get that full sentence. All right. Actually, Now, what I said is, so after 5 years, Roger decided that he will go on a business trip to Chicago. So he remembered that this man had given him a business card, a visiting card. So he said, let me go and meet him. He took the business card. He said, let me go and meet this Hanover in Chicago. And so he went. और शिकागो में जाकर के उसने उसका बिजनेस कार्ड लेकर के उससे कहा, चलो मैं आकर के उस व्यक्ति से मिलता हूँ। When he went to and the office that Hanover had was a beautiful office. So he went to that office and then he inquired about this Hanover. और हैनोवर के ऑफिस में जाकर के वहां पर रिसेप्शन में जाकर के उस ऑफिस में हैनोवर के बारे में उसने जानकारी हासिल की। The receptionist said, you will not be able to see Mr. Hanover, but if you go inside, you can see Mrs. Hanover. और हैनोवर से इस प्रकार उस व्यक्ति से कहा गया कि आप हैनोवर को मिल नहीं सकते, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तो Mrs. Hanover, you can meet Mrs. Hanover, his wife. अगर आप अंदर जाओगे तो आप उनकी पत्नी से जरूर मिल सकते हैं। This man, Roger, was a little confused, but he went inside. He went inside and then he got into the room of Mrs. Hanover. There he saw around a 50-year-old lady who was sitting there. So he went and met her. और उसके बाद वो अंदर जाकर के जो 50 वर्ष की एक स्त्री वहां पर बैठी हुई थी, जो हैनोवर की पत्नी थी, उनसे जाकर के वो मिला। And then she said, "Oh, you know my husband," and she was very happy. She received him. और बहुत ही आनंद के साथ में उसने उनको ग्रहण किया, उनको अंदर बुलाया और उनसे कहा, अरे ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरे पति को जानते थे। And then Roger introduced and said, I met your husband 5 years back while I was retiring from the army. He dropped me in my house and he came back. And so this wife asked, when was that? Which day was that? और इसके बाद हम देखते हैं वो व्यक्ति उनसे कहने लगता है कि मैं 5 वर्ष पहले हैनोवर से मिला हुआ था और उसको जब मैं आर्मी से रिटायर हुआ था तब उसने मेरी मदद किया था और मैं उसके साथ गाड़ी में आया तो उस समय में मिला था। वो उससे पूछने लगा वो कौन सा दिन, वो कौन सा तारीख था। So when Mrs. Hanover asked this, he said it was on May 7th, 5 years ago. और मई 7 को
जो 5 साल पहले मई 7 में ऐसा घटना घटित हुआ था, वो उसकी पत्नी को बताते हैं। When Mrs. Hanover asked the date, Roger was a little surprised. He asked, "Anything specific? Why are you asking me the date?" और वो उसके बाद रोजर सिम्स उससे पूछता है, क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या क्यों आप इस तारीख को पूछ रही हैं? And then he was thinking in his mind, should I tell Mrs. Hanover that I told him about the Lord Jesus Christ? He accepted the Lord Jesus Christ. Should I tell her or not? But finally he told her. On that day, on May 7th, I remember it because I spoke to him about the Lord Jesus Christ, and he accepted the Lord Jesus Christ before he dropped me and went to Chicago. और उसके बाद वो व्यक्ति रोजर सिम्स सोचने लगा, अरे मैं क्या उससे कहूँ या नहीं कहूँ, कहूँ या नहीं कहूँ? अंततः वो उसको कह ही देता है कि वो 7 मई था जब मैंने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था। वो मुझे जब शिकागो में छोड़ने से पहले मैंने उसको सुसमाचार सुनाया था, उसने ग्रहण किया, उसके बाद वो चला गया। The moment she heard that May 7th was the day when Hanover, her husband, accepted the Lord as his personal savior, she started weeping. She started crying. Her body was shaking. She cried so much in front of Roger. पता है उसी समय में रोजर के सामने वो स्त्री, जैसे उसने सुना 7 मई था, वो बहुत ज्यादा रोने लगी, उसका शरीर बहुत कांपने लगा। After some time, she controlled herself and she looked at Roger, and you know what she said? She said, "I have prayed for my husband's salvation for so many years." और आपको पता है उस स्त्री ने क्या कहा रोजर को देखते हुए? पता है, मैंने अब मेरे पति के लिए कई सालों तक प्रार्थना किया है कि वो उद्धार को पाले। And I believed that God would save him. और मैं ऐसा विश्वास करती थी कि प्रभु उसे उद्धार करेगा। Then Roger immediately looked at his wife and asked him, "Now, where is your husband?" और उसके बाद रोजर उसको देखता है और कहता है, अभी कहाँ है तुम्हारा पति? You know what the wife said? The wife अब said, "He is dead." पत्नी ने क्या कहा आपको पता है? वो कहती है कि वो मर गया। And then she went on to say that Hanover was in a car crash as soon as he left Roger and he was on his way to Chicago. There was a terrible accident, and Hanover died in the car on that very same day. और उसके बाद आपको पता है वो क्या कहती है कि जिस दिन रोजर है वहां पर ड्रॉप किया था, उसके तुरंत बाद जैसे ही वो शिकागो को बड़ा आगे बहुत बड़ा दुर्घटना उसके साथ हुआ, और उसके बाद फिर वो व्यक्ति क्या होता है, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मर जाता है। अंकल, हाउ मच And टाइम विल बी टेक, बिकॉज आई विल हैव टू गो वेरी अर्जेंट बिकॉज द कॉल इज कमिंग अगेन एंड अगेन। no, another 2 minutes, I'll finish it, ओह, Deepu. थैंक 2 minutes, यू। I'll get over. Okay. Now, so this uh, 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 because this lady said before he got home he met with that accident, and then she said, "I thought that God had not kept his promise," and she started crying again. और उस स्त्री ने क्या कहा उससे पता है? वो कहती है रोजर हमसे कि मैं ऐसा सोच रही थी, मुझे परमेश्वर ने उसके वायदे को पूरा नहीं किया है, उससे पहले ही वो बिना उद्धार पाए हुए प्रभु में चला गया। Now that is what the verse 22, the last portion says, "None of them that trust in the Lord shall be desolate." और यही वो शब्द का मतलब है कि जो कोई उसमें अपने विश्वास रखता है, उसके शरण पाता, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। All right. I think with this we close this study, and we will carry on next week. I finished Psalm 34. We will see what we will learn from next week onwards. God bless you all, and thank you very much. और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमने इस अध्ययन समाप्त कर दिया है भजन संहिता 34 का, और प्रभु की इच्छा हुई तो अगले समय में हम लोग जरूर उस बात को सीखेंगे, प्रभु क्या चाहता है